अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। There are still unanswered questions. 270 people at the same time। क्या वो डिस्टाइन था? There are two ways again to look at it. One says everything is written, another says everything is not written. One of the things that they all wanted to experience together was a death by a plane crash. पितृदोष है, वो ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। There was this guy who was 19 years old. वो सोने गया तो उसको बहुत चिल्स हुए. Again the next night this happened again. करते करते इस बात को 3 साल निकल गए. एंड हीलर्स के पास लोग तभी आते हैं जब उनको कहीं और से आंसर नहीं मिलता. सब कुछ फिगर आउट करने में 6 months के बाद उन्होंने बोला देयर इज समबडी हु पास्ड अवे इन योर फैमिली लीनिएज एंड दैट पर्सन इज नॉट स्पोकन अबाउट. द मॉम सेड दैट यस देयर वाज अ कजिन. यंगस्टर्स इन द कॉलेज जो वीजा बोर्ड को यूज करते हैं, कनेक्ट विद द हायर सेल्फ. क्या लोग अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं आफ्टर डेथ? बिल्कुल कर सकते हैं. कोई कहीं नहीं जाता. एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं. यू कॉल देम दे विल बी. स्विमिंग पूल में था मैंने किया स्विम. एक तरफ आके पैर फिसला, क्या हुआ, एंड आई कुड नॉट कम आउट ऑफ द पूल. उन कुछ सेकंड्स में आई कुड सी लॉट अबाउट माय एंटायर लाइफ. जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकल करके बाहर की साइड आए हैं वो अपनी पूरी लाइफ रिले कर सकते हैं. देयर हैज बीन मेनी मोमेंट्स वेयर आई हैव सेड दिस लाइन, मेरा हो गया. जस्ट क्लोज योर आइज. जो भी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 270 पीपल डाइड एट द सेम टाइम. यस. तो आपने कहा था कि जो ट्रॉमा उनको फेस हुआ उसका क्या होगा? क्या वो आगे पास ऑन होगा? डेफिनेटली पास ऑन होगा. डेफिनेटली. किससे पास ऑन होगा? Trauma doesn't travel through your blood. It travels through emotion. अच्छा. Anybody who's going to be more sensitive, more feeling, more empathetic is going to catch on to and latch on to that trauma. कैसे हुआ काम सब? मेरे फैमिली में somebody passed away in a plane crash. ठीक है. But that person is very distant to me. But I feel it more than everybody else. I feel it more than their own parents. I feel it more than their own wife or children. Okay. I feel it more. I feel that loss more in my DNA as compared to the blood. I am absorbing it more. I am representing it more. Maybe you're thinking too much about the person, about the episode, about the person. But why would you think about only that one person? It's all karmically connected. So you may have a very strong karmic tie with somebody who's a very distant cousin to you than your own brother. ओके, इसे फिर से करते हैं कि जो 270 लोग की डेथ हुई इस एयरप्लेन क्रैश में, इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन. 270 पीपल एक ही इंसिडेंट में, एक ही जगह, एक ही टाइम पे दे लूज देयर लाइव्स. सो फर्स्ट थिंग, क्या वो डिस्टाइन था? There are two ways again to look at it. One says everything is written, another says everything is not written. The only thing एक is... बताओ. It's like See, those 270 people came together because they all had signed up for a same soul contract. One of the things that they all wanted to experience together was a death by a plane crash. they signed up When for we it. decide, yeah, we signed up for it. When we choose... So, okay, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. बिल्कुल. As a soul, you go to your soul plane and you decide this planet, this parent, this life, these upbringing, these issues, these traumas, this death, this illness, this death. It's all signed. All signed. ठीक है. Then you forget about it. Done. Because याद रहेगा तो फायदा नहीं है ना वो सब होने का, right? So why only these 270 people came together is because they all had that in their soul contract. ठीक है. This is what they wanted to experience as death. So this is what they did. They came together, including the pilots, including the crew, including the people, including the infants, including the children, everyone, right? अब ये एक it's like a trauma site, with 270 people. When you have a traumatic incident like this, or a war, or a genocide, it becomes a traumatic site and it becomes like a wormhole in the universe. It's like a dent in the universe, which is always radiating that traumatic energy constantly, and that constant energy is picked up by someone who's karmically connected to them. That karmically connected person can be a friend,
can just be a doctor, can just be your distant cousin, can be your masi, your mama, somebody who's going to feel that trauma more than anybody else. And then that person is going to do things to release that trauma. मुझे लास्ट पार्ट नहीं आया समझ कि जो 270 लोग थे उन्होंने सबने साइन किया था अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि उनको अपनी डेथ एज एन एयरप्लेन क्रैश में चाहिए, जो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हाँ, राइट. सो इट इज ऑल्सो द सिमिलर थिंग ना. एक दिन के अंदर हॉस्पिटल्स में कितने डेथ्स होते हैं, राइट? हम उसका काउंट नहीं रखते हैं, बट ऑल दोज पीपल डिसाइडेड टू कम एंड डाई इन द हॉस्पिटल, राइट? तो वो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि वी डिसाइड हमें कहाँ एक पैदा होना इलनेस है. से हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे एंड दिस डे आई एम गोइंग टू ब्रीथ माई लास्ट. ऑलराइट, दिस इज ऑल लाइक destined कि हमने उसको लाइक साइन करके आए हैं कि ऐसा Not चाहिए. destined. Destined means you're giving the charge to somebody else. This Someone is what else. you chose. अच्छा, I chose. This is what you chose. Okay, कि मुझे इस लाइफ में यहाँ पैदा होना था, इस बॉडी में पैदा होना था, बिल्कुल. और मेरी मौत इस तरीके से होगी. It's all So you decided. tie your beginning and your end, and then you decide everything that is going to happen in between. In the real time over here? या Yes, फिर वो in भी the real पहले से time. लिख के आया हूँ मैं? नहीं, आप लेके आए हो कि ये मेरा time of, this is how I'm going to be, and this is how I'm going to die, and I'm going to choose everything that is going to happen in between. Okay, ठीक है. So this concept of free will that people talk about is very shady, because if I ask you, what is going to be your next thought? It's in my control. I can think about it. It is not in your control. क्यों? आपका नेक्स्ट थॉट आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम थॉट्स क्रिएट ही नहीं कर सकते. गो हेड दिवस, क्रिएट अ थॉट. नहीं, We मतलब only मैं क्या करने attract वाला हूँ? thoughts. अच्छा, okay. We only attract thoughts. Our mind has no capacity to create a thought. जो हम थॉट अट्रैक्ट करते हैं, हमें वही लगता है कि हम वो थॉट क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स द इल्यूजन दैट द माइंड गिव्स यू, बिकॉज द माइंड वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू. तो वो कैसे कंट्रोल करेगा? ये बता करके कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ. बट यू आर ओनली अट्रैक्टिंग थॉट्स. आपने कोई चीज़ देखी, आप कुछ बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ दिख जाएगा, सडनली माइंड उधर चला जाएगा, राइट? अगर इतना ही आपका पावर ऑफ क्रिएशन होगा तो आप वहीं रहोगे ना. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनी again is created because we want to think a certain way. We want to lead the human race in a certain way. We want to condition the human race in a certain way. But the moment nobody wants to take responsibility of choosing something wrong, because ये सारे experiences को हम wrong term करते हैं. ये कैसे हो सकता है? कोई भी इंसान अपनी डेथ क्यों ऐसे चूज करेगा? हाँ, ये सवाल बट क्यों आएगा नहीं mind. करेगा? But क्यों कोई तो करेगा? तरीका चूज करेगा ना जाने का. But not like this ना कि बस मैं But why ऐसे मर not? जाऊँ. The soul doesn't understand pain. The soul only understands growth and evolution. उसको तो सोल प्लेन पे पेन हो ही नहीं रहा ना किसी भी चीज से. He or she is only, or it is only gaining experience. Because with every experience, it is becoming better. It is understanding the emotions better. It is understanding the vices and the versa better. It is understanding what it takes to be in that situation. It is understanding that fear of those 5 seconds before you know you're going to die. That experience. Okay. That is going to make the soul level up. The harder the battle, the better the soldier. तुमने बात करी कि अगर एक इंसान यहाँ पे आता है दुनिया में तो ही हैज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट. Yeah. ठीक है कि मैं कहाँ पे पैदा होऊंगा और मेरी डेथ कैसे होगी. Yep. और इस पूरी जर्नी में आई हैव द फ्री विल टू डिसाइड व्हाट आई डू. I have already chosen what is going to happen to me, but in that whole thing, the universe, because the universe or the multiverse is also learning from you, so it gives you timeline shifts. थोड़ा सा ना आराम से बात करते हैं बैठ के. हिंदी में बात करते हैं. वो एंड आपको मुझे ये टर्मिनोलॉजी हिंदी में पता नहीं है, पता नहीं, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा कीप इट इंग्लिश. ठीक है. हाँ, मैं कोशिश करती हूँ जितना. सो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है. शुरू से शुरू करते हैं. हाँ, बिल्कुल. मैं एक सोल हूँ, ठीक है. Okay. और ये मेरा प्लानिंग रूम है, ठीक है. ये आपका planning room ये है? मेरा प्लानिंग रूम है. आप मेरे स्पिरिट गाइड हैं, ऐसे ही मेरे एंसेस्टर्स हैं, ऐसे ही मेरे असेंडेड मास्टर्स हैं, ऐसे ही मेरे एवरेंस हैं. ये सब लोग मेरे को गाइड कर रहे हैं कि ये देखो कौन है पहली बात. Because I have only योर known- एंसेस्टर्स आर देयर. हाँ, पूर्वज यानी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स Yes, मदर्स. absolutely. हाँ. Your spirit guides are people who met you in your previous lives, all the previous births that you've taken. Your spirit guides and your ascended masters were connected with you some way or the other, but they decided that we don't want to take any more human births. But Okay. they are there to guide. Okay.
सो उन्होंने चूज़ किया कि शायद पुराने ज़माने में आपके कोई टीचर रहे होंगे जिनसे आप सीखते थे. ही डिसाइडेड ओके आई एम गोना टेक अ ब्रेक फ्रॉम टेकिंग बर्थ अगेन. ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. लेकिन ये तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट बाहर ले आएंगे तो फिर तो पूरा रिलीजन बंद हो जाएगा ना, बिकॉज वो तो चली इसी बात पर आए कि आपको मोक्ष दिला के रहेंगे वो. दैट इज द अल्टीमेट गोल. एग्जैक्टली. सो मोक्ष अल्टीमेट गोल नहीं है. वो तो ऑलरेडी है आप में. यार ये पता है बहुत बुरा कंफ्यूजिंग हो रहा है बिकॉज मेजर जो फंडामेंटल्स है वो सब हिल रहे हैं इस समय. मैं मेरे को ही गोली मारेंगे, मैं बता रही हूँ. अच्छी बात है. प्लीज गो ऑन. मे बी यू लाइक साइन फॉर इट. सो ओके, सो आपने पहले हम उस बात को कवर करते हैं, फिर मोक्षा पे आएंगे. वेरी सिंपल. हाँ बताइए. सो मैंने अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के बोला कि ये मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था. अब मेरी कोई भी लाइफ कभी भी 100% एंड नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा. कोई भी इंसान किसी भी लाइफ में अगर जाएगा, इफ दे विल एक्सपीरियंस डेथ, दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट 100% ऑफ देयर टास्क. समथिंग विल बी लेफ्ट. या तो वो अगले दिन कुछ करने वाले होंगे, या अगले कुछ ना कुछ रहेगा. राइट. सो द जर्नी इज ऑलवेज इनकम्प्लीट. राइट. सो विद दैट इनकम्प्लीट जर्नी आई कम एंड सिट एट दिस टेबल एंड आई से ओके, दिस इज ऑल दैट आई लर्नड. But I think what I missed experiencing, which I saw Divas experiencing in that life, I think I should take that as a soul contract. So Divas का उस life के अंदर he was a billionaire. तो मुझे लगता है मुझे वो वाला part experience करना है मेरी life में. ठीक है. But at the same time I had this person, who was having polio. मेरी वो दोस्त थी, उसका पैर नहीं था. मुझे वो वाला भी जो है इमोशन एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज वही तो मुझे ग्रो करेगा ना. द सोल इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट इवॉल्विंग, पीरियड. सो मैंने वो सारे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मुझे समझ आ रहे थे, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे असेंडेड मास्टर्स ने मुझे बताए, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे बताए, और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे एंसेस्टर्स ने मुझे बोला कि ये एक्सपीरियंसेस हम नहीं प्रोसेस कर पा रहे थे तब, ये हमारी कैपेसिटी से बाहर था मैनेज करना. मे बी वन ऑफ माई एंसेस्टर्स लॉस्ट देयर चाइल्ड व्हेन दे वर वेरी अर्ली, व्हेन द चाइल्ड वाज वेरी यंग. They were not able to process it. Or something happened, they were in a war, they were not able to process it. So that also comes in, all the good and bad. And the ancestors will say, अरे हम ना ऐसे ट्रैवल बहुत करते थे लाइफ में, तो वो हमारे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देता था. तो मैंने वो ट्रैवलिंग अपने चार्ट में डाल लिया. सो ये सब डालने के बाद फिर मैंने अपना प्लैनेट चूज किया, क्योंकि मल्टीवर्स है. अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. सो मेनी अदर प्लैनेट्स हैव लाइफ. तो देन आई चूज my first parents, which is the planet and the light body. So planet is earth, and in this case, and the light body is sun. So sun becomes father sun, and mother becomes mother nature, mother Gaia, whatever, mother earth, जो भी हम उन्हें कहना चाहते हैं. ये हमारे फर्स्ट पेरेंट्स हैं, जो हमारे कंसिस्टेंट पेरेंट्स हैं. उसके बाद हम चूज करते हैं पेयर रेंट, जो है एक पेयर जिसको हमने रेंट पे लिया है हमारी लाइफ हमारे साथ निकालने के लिए. सो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड पेरेंट. सो उसके बाद हमने वो 2 लोग चूज़ किए, और फिर हमने उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करके ये देखा कि उनके क्या चैलेंजेस हैं लाइफ में, और क्या ये वाले चैलेंजेस मैं अडाप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ आऊँगी तो मुझे उनका DNA भी तो हेरिडिटरी आएगा ना. सो एम आई गोइंग टू टेक दिस? if my father has a pulmonary disease, do I want to take it? If my father was beaten up by his father and he had a very terrible childhood, so he's going to be a very different father, am I going to be okay taking that? So I decide and choose my parents based on that. That is how healers are able to tell that a soul is destined to come your way or no, because they can already see it. They can see that path. So then you take birth, and then when you are in the mother's womb is when 70% of the DNA gets transferred from the mother and 30% only goes from the father. It's not a 50-50. Okay. And then you take birth, and then your journey begins. And then you start experiencing those things. अब क्या होता है, अब मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑटिस्टिक चाइल्ड बन के आऊँगी. ठीक है, तो ये मेरा चॉइस है बीइंग ऑटिस्टिक. इट इज़ नॉट अ कर्स, it is not an evil eye, it is not anything that anybody else has done on me. It is my choice to come as an autistic person. Now I have lived my autistic life till 10 years. अब 10 साल के बाद या 6 साल के बाद या 12 साल के बाद यूनिवर्स मुझे एक टाइमलाइन शिफ्ट भेजता है,
जिसमें it is a choice whether I choose to stay here and experience this more or I heal this and get to the other side of it. People who have cancer, some of them heal, some of them don't. It's a timeline shift. The people who heal, they jump the timeline. It takes effort, takes energy, takes healing, takes a lot of things that you have to change in your behavior, your everyday life, your spiritual life. It's like changing your coding. You know, so वो करके आप टाइमलाइन शिफ्ट कर लेते हो, मेहनत है उसमें. So some people would say that no, I am not okay with this. Is all happening in your subconscious. Your subconscious is so powerful, so powerful. When you say like timeline shift, Yes. do you mean कि 10 साल तक उस बच्चे ने ऑटिस्टिक होते हुए एक लाइफ जी, and now he has an option to cross over to the next life? Yes. Not That's a the next timeline. life. In that life, he has an option to heal from it and move ahead. Okay. Or become worse at it and die. Or become half better and do something else. ये सारे options आपको मिलते हैं हमेशा. जो लोग कहते हैं कि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरे पास एक क्वेश्चन मेरे रीडिंग्स में, अगर मैं दिन के 10 रीडिंग्स ले रही हूँ तो 8 में आता है ये. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ आपका पर्पस ऑफ लाइफ वो है जो आप चूज़ कर रहे हो. आज मैंने चूज़ किया है दैट आई एम गोइंग टू बी अ स्पिरिचुअल एवरनरू मास्टर. आई एम सिटिंग हियर एज एन एवरनरू मास्टर. इज माई पर्पस ऑफ लाइफ. टुमारो मॉर्निंग आई गेट अप एंड डिसाइड नहीं, मुझे तो डांसर बनना है. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड. Or I don't want to do any of this. I want to just be a mother to my son for the next 5 years. So my purpose of life changes. The universe is always giving you. It's like a game. You have to understand. जब आप VR headsets पहन लेते हो, है ना, आपका पाथ आप जैसे जैसे चलते हो वैसे वैसे इमर्ज होता है. गेम बनाने वाले ने पूरी बना दी. उसको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता है कि आप ये लोगे तो ये आ जाएगा, कॉइन लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो मर जाओगे, जंप करोगे तो टूट जाएगा, एवरीथिंग. राइट. सो दैट इज़ वॉट रिलीजन सेज. ये तो सब लिखा हुआ है, पूरी गेम लिखी हुई है. राइट. बट वॉट स्पिरिचुअलिटी सेज, बट द पाथ इज गोइंग टू इमर्ज एज यू वॉक ऑन इट. सो यू आर, एज यू आर वॉकिंग, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर थिंग्स. And based on how you are walking, based on how many jumps you are taking, based on how many collection you are doing, you know, the new timelines will keep on emerging in front of you. कुछ आप ले पाएंगे और कुछ आप नहीं ले पाएंगे. थोड़ा ना आज कॉम्प्लेक्स हो रहा है मेरे लिए, समझ में. लास्ट टाइम भी हो रहा था ये. नहीं, लास्ट टाइम आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँ दिवस, मेरा इन्फॉर्मेशन ही ऐसा है. ओके. There are like families जहाँ पे there is one version who was very strong. Maybe the grandfather was like उसने एम्पायर किया सेटअप, Yeah. और उसके बाद वाले ने सब कुछ डुबो दिया. बिल्कुल. तो कैसे स्ट्रांग हुआ? सोल कॉन्ट्रैक्ट है. जो चीज़ शुरू हुई है वो कभी ना कभी ख़त्म होगी. ओके. राइट. सो अगर कोई एम्पायर स्टार्ट हुआ है तो वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगा. अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो अगले ही जनरेशन में ख़त्म हो रहा है, और ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है जो 10 जनरेशंस चल रहा है और चल रहा है. लेकिन एवरीथिंग दैट हैज स्टार्टेड विल कम टू एन एंड. सो इज इट अ पितृदोष? नो, इट इज़ नॉट अ पितृदोष. वो ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? पितृदोष नहीं होता है. देयर इज़ एन एंसेस्ट्रल कर्स और अ ब्लेसिंग, जिसको हम हिंदी में पितृदोष, और हम बोलते हैं कि अरे वहाँ से हमारे को बहुत अच्छा मिल रहा है. नाउ व्हाट इज़ पितृदोष? पितृदोष इज़ नॉट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू योर एंसेस्टर्स. रिलीजन में हमें ये बताया जाता है कि कुछ गलत हुआ है, उनका कोई लास्ट राइट अच्छे से नहीं हुआ, वो खुश नहीं है, तो हमें उनको ऑनर दोबारा से करना है. जी. है ना. स्पिरिचुअलिटी सेज यू हैव टू ऑनर देम एवरी डे. You know, they have been through much larger battles than we can also imagine. You know, so you have to honor them every day. You have to sit at your ancestral altar for 5 minutes a day and say, I am because you are. My DNA has them. Yeah. You know, and whatever blessing or curse they have been through in their life, वो तो हमारे पास है ना in DNA. Dormant है. तो डॉर्मेंट में क्या होता है, जब वो एक्टिव होता है हमारे स्टेटस के अंदर. कैसे एक्टिव होता है? जब हम ये कहते हैं कि मेरी नानी को हार्ट प्रॉब्लम थी. जी. है ना. उनको हार्ट प्रॉब्लम कब आई? जब वो 40 साल की थी. है ना. तो उनका जो 3rd जनरेशन है, यू नो, विच इज़ मी, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम 40 साल में आ जानी चाहिए. और जैसे ही वो आएगी तो वो बहुत नॉर्मल होगा. है ना. बिकॉज अरे नानी को भी थी ये,
जोड़ों का दर्द, अरे तुम्हारी मम्मी को भी था. It's said to be passed on genetically and generationally, right? लेकिन जब वो इंसान इमोशनली किसी चीज़ से टॉर्मेंट होता है, सो मे बी एट 40 माई नानी हैड अ डिवोर्स, or maybe at 40 she had a surgery. Okay. And at that time of surgery, she was super anxious because no one gave her any answers. No one told her what is going on in her life. No one told her whether she's going to be alive or dead after that surgery. So that emotion that she wasn't able to process passes down the generation. And around that time, my mother would feel it. And around that time, I would feel it till it is healed. So at around 38, 40, my mother will suddenly become anxious for no reason. आप जैसे बोलते हो, अरे इससे पहले तो मुझे एंग्जाइटी थी नहीं, अब पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई. It's not something you ate. What you experienced. Yes, definitely what you experienced, but something that also got carry forwarded to you, no? So you mean to say कि इस एज पे ही कुछ चीज़ें अनलॉक. So I'll give you an example. There's this book, and I'm forgetting the name of the book, but there's this example. There was this guy who was 19 years old, and it was his birthday party, and he was celebrating his birthday and everything, and drinking away and whatever. पार्टी खत्म हुई, वो सोने गया, तो उसको बहुत चिल्स हुए, उसको बहुत ठंड लगी और बहुत उसको अजीब लगने लगा. तो ही थॉट मे बी मैंने ज़्यादा पी लिया है, ऐसा कुछ. सो सुबह 4-5 बजे के पास आके के वो सो गया. Next day morning, a normal day. Again, the next night, this happened again. The next night, it happened again. The next night, it happened again. Then he went to his parents and said, listen, I'm not able to sleep before 5 and I'm not able to go to school and, college and whatever. They said, okay, let's go to the doctors. They went to the doctors, everything okay, neuroscans okay, MRI is okay, everything fine. करते करते इस बात को 3 साल निकल गए. एंड हीलर्स के पास लोग तभी आते हैं जब उनको कहीं और से आंसर नहीं मिलता. So he went to somebody like me who's an ancestral healer. Okay. So the ancestral healer said कि भैया हम तो पूरा ही खोलेंगे. So अगला पिछला तुम्हारे पेरेंट उसके पेरेंट सब कुछ फिगर आउट किया. सब कुछ फिगर आउट करने में 6 months के बाद उन्होंने बोला there is somebody who passed away in your family lineage and that person is not spoken about. Okay. He says I don't know anybody like that. He says okay, you'll have to go back and check. हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, हमें आपकी फैमिली लीनेज नहीं पता. So he went to his mom and he discussed and went to the father also and discussed. So the mom said that yes, there was a cousin in Poland. He died very early. So we as a family decided not to talk about him. It was very sad and tragic. So then he started inquiring about it, and that cousin was working in a factory in Poland 50 years ago. This 50 years का गैप है दोनों में. एंड वो फैक्ट्री में आग लग जाती है रात को 1-1:30 बजे के आसपास. एंड इतनी ठंड होती है वहाँ पे कि वो बिल्कुल क्रॉल करते करते हाफ बर्न्ट जो हैं, क्रॉल करते करते वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं. और उनको वो चोकिंग फीलिंग होती है बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक एंड ही इज़ नॉट एबल टू शाउट आउट एंड आस्क फॉर हेल्प, एंड ही डाइज ऑन द स्पॉट. नाउ दैट पर्टिकुलर trauma which went unprocessed at 19 to a cousin got activated in him when he became 19. And only by the acknowledgement of this fact, only by that story being narrated, only by a certain healing being done where he wanted to be honored and heard. So there was a ritual that was done where it was just said that we hear you. You are not lost. You are not lost in the constellation. You're not a star that died and no one knew about. So that trauma re-emerged to be seen. Every trauma needs to be seen and heard. You cannot put it under the carpet. Every trauma needs to be seen and heard. Seen and heard. So वो जो इतने सारे medicines और जो इतनी सारी चीज़ें नहीं कर पाए, just that one understanding that something like this happened and this is repeating, and I honor it and I understand it, and it was fine. And there are not just there are thousands of stories like these. There are some people, specifically youngsters in the college, जो Ouija board को use करते हैं to connect with the higher self or with someone. कितना safe है? Safe तो नहीं है. But work करता है? Work तो सब कुछ ही करता है. बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम स्पिरिट वर्ल्ड को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. हम स्पिरिट वर्ल्ड में ही रह रहे हैं.
You know, it's not some other dimension that is going to open. Now people think that dimension is कोई दरवाजा खुलेगा और हम उसमें चले जाएंगे. It's not that. The dimension is here. You know, in here I can be a 3D person. In here I can be a 5D person. अगर हम गुरु नानक देव जी को लेते हैं या कोई ऐसे प्रॉफिट लेते हैं, जीसस क्राइस्ट लेते हैं, जो बहुत साईं बाबा लेते हैं, जो बहुत पहुँचे होते हैं, वो भी तो फिजिकल बॉडी में ही है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी में 10th डिमेंशन पे है. वो वहाँ उसी बॉडी में रह के बहुत ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, है ना. इसलिए हम उन्हें भगवान बोलते हैं, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है करना जो वो कर रहे हैं. They have expanded themselves so much that the body doesn't mean anything. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सब वूडू है. हाँ, बिल्कुल. सोचते हैं कि ये कैसी कैसी बातें करते हैं लोग. बिल्कुल. एंड आई रिमेंबर इन द लास्ट पॉडकास्ट कुछ लोग थे हु सेड कि ये सब बातें डजंट मेक सेंस टू देम. Yeah. And a lot of people who said कि it makes absolute sense to them. Yeah. तो फर्स्ट थिंग, जो उसमें बिलीव नहीं करता है उसे आप क्या कहोगे कि वो उसमें बिलीव करना शुरू करे या इसको समझने की कोशिश करे? कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स अ डोर दैट, वो जो दरवाजे पे नॉक है ना, वो आपके पैदा होने से शुरू हो जाता है. वो आपको 50-60 साल में नहीं होता जब आप अपनी सारी लाइफ जी चुके होते, चलो अब हम रिलीजन की तरफ चलते हैं, अब हम भगवान की तरफ चलते हैं. नो, दैट नॉक ऑन द डोर ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, मोर एक्सपीरियंसेस, मोर लाइफ, मोर अंडरस्टैंडिंग, more spirituality, that happens from the moment you get born. Some people will open that door at 5, some will open them at 50, some will open them never. Again a part of soul contract? Again a part of choice. सोल कॉन्ट्रैक्ट तो वो करके आए हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते. लेकिन ये जो टाइमलाइन शिफ्ट वाला नॉक है ना, बार बार जो आपको आता रहता है लाइफ में कि अच्छा ये कर लिया, अब ऐसे कर लेते हैं, अब ये कर लिया, चलो अब ऐसे कर लेते हैं. इट्स लाइक एक बच्चा जो मैथ्स की क्लास में है ना, उसके बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो टीचर उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रही है कि एक काम कर, तू IIT भी कर ले, एक काम कर, तू ये कर ले, तू नीट का एग्ज़ाम दे दे, तू कैट का एग्ज़ाम दे दे. बाकी बच्चों को तो नहीं दे रही, है ना, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस ही बहुत बढ़िया आ रही है, वो झेल जा रहा है सब कुछ, वो देख पा रहा है सारी चीज़ें, वो मेहनत ज़्यादा कर पा रहा है. वो सब आपके हाथ में है. दैट इज़ वॉट इज़ देयर इन योर हैंड. हाउ यू लिव दैट लाइफ, अगेन हाउ यू वॉक दैट रोड इज़ ऑन यू. बेस्ड ऑन दैट द अपॉर्चुनिटीज़ विल इमर्ज. So if I am a brilliant student in my class, मेरे को वो राइटिंग कंपटीशन में भी डालेंगे, मुझे स्टेज पे भी सबसे आगे खड़ा करेंगे, मेरे को सब कुछ. I'll have more options. I'll have more options. कि अगर सपोज आपके अच्छे नंबर आते हैं, you can choose like science and commerce and arts. Exactly. It is like अगर मैंने, जब हम कहते हैं कि यार ये इंसान तो सब कुछ ही मैनिफेस्ट कर रहा है, मैं अपने लिए ही सुनती हूँ. मैं 4 साल पहले रेंटेड अकोमोडेशन में थी, आज मेरे पास 4 घर हैं. आपने तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्रैक कर लिया ना. क्या है फॉर्मूला? बताओ ना. सब कुछ सही है. आई स्टार्टेड वर्किंग विद माई सेल्फ, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई ओन पावर. तो मुझे अगर बाहर किसी इंसान की बात अच्छी नहीं लगती तो मैं उससे बाहर नहीं लड़ रही, मैं तो अपने ऑल्टर पे आके बैठती हूँ और फिर मैं उस इंसान से वहाँ डील करती हूँ एनर्जेटिकली. मैं तो उससे नॉर्मली तो बात ही नहीं कर रही. अगर आपने मुझे अभी कुछ बोला, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत ऐसा लगा, मैं तो लड़ूंगी ही नहीं आपसे. तो बोलूँगी अरे वाह क्या बात बोली, और फिर मैं अपने घर जाऊँगी, अपना माई रू ओपन करूँगी, माई यूनिवर्स. एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिवर्स. आई ओपन अप माई यूनिवर्स, आई चेंज थिंग्स देयर. Why do I have to even change it outside? That's the formula. That's people don't want to learn, no, because it takes effort. Divas, it takes effort to sit with yourself. It takes effort to even sit with one emotion. It's very easy to say I'm sad and call up a friend. But it's very difficult to say I'm sad and I'm going to sit with myself and write. What am I sad about? Why am I sad? What is bothering me? What is coming up? It's very difficult to do that. So वो काम जब कोई नहीं करना चाहता, लेकिन चाबी चाहिए घर की तो सबको चाहिए. So you have to understand you are the most important person for you. The only thing that will make you gain more in life or lose more in life is your own experience and the way you look at that experience. A lot of people may think that अरे डिवोर्स हो गया लाइफ खत्म हो गई, you know, हस्बैंड चला गया लाइफ खत्म हो गई. You know, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम अपने सामने देखते हैं, है ना. और कुछ लोग हैं जो उसी को ही एल्केमाइज कर देते हैं कि अरे यार डिवोर्स हो कोई बात नहीं. आई एम गोइंग टू लाइक दिस RJ who is doing the divorce podcast, brilliant girl. You know, she alchemized it. She turned it into medicine. The idea is to turn your pain into medicine.
You alchemized it. You were a stutterer, right? And today you are coaching millions of people. Why? Because you chose that I'm not going to stay in this pain. इसमें तो मैंने रह लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, रोज ही सेम एक्सपीरियंस हो रहा है. अगर मुझे इस एक्सपीरियंस को चेंज करना है तो कैसे करूं? वो एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए कौन आया आपके पास? कौन सा गुरु आया? कौन सा आई वुड से किसी रिलीजन ने आपको हेल्प किया? किसी ने. इट वॉज इन यू. योर इनर सेल्फ शाउटेड, सेइंग, योर सोल शाउटेड, इनफ, आई डोंट वांट दिस एक्सपीरियंस एनी मोर. हो गया मेरा, सीख लिया मैंने, इसके आगे इसका कुछ नहीं है. मैं सारी जिंदगी या तो स्टटर कर सकता हूँ या मैं इसके ऊपर काम करके. यू शिफ्टेड अ टाइम लाइन. So the old you, when you look at it, how many times we say as people, I don't even recognize my old self. Why? Because we shifted that timeline. That old self died. And every time we move into a new timeline, why is it a chaos? Because there is pain of losing your old self. जो आपको लगता है कि यार हम हमेशा इन मेकिंग हैं. हम बहुत ही छोटे टाइम के लिए वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम कहीं पहुंच गए, और जैसे ही वो एक्सपीरियंस करते हैं यार हम कहीं पहुंच गए, अगले ही कुछ मिनट में, सेकंड के अंदर हमें अगला टास्क आ जाता है. कैसे आ जाता है? इट्स अ साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी आर गोइंग टू बिकम बेटर एट हु वी आर. You spoke about Evrenru. या ये क्या होता है? Evrenru is a system of remembering before the world taught you who you are. System of remembering before the world taught you who you are. Okay? Remembering whom? Remembering your true self, your honest self, your soul journey. Simplified. When you recognize your soul journey कि मैंने अपने एवरेंड्रू लाइफ के अंदर अपने 22 लाइफ टाइम्स देखे हैं. 22 lifetimes. Past lives. पास्ट लाइव्स. Okay. उन 22 लाइफ टाइम्स को जब मैं स्टडी करती हूँ और समझती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जो चीज़ें मैंने आज अपनी लाइफ में चूज़ करी हैं वो क्यों करी हैं. सो आई एम एबल टू डील विद देम बेटर. आई एम एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ देम बेटर. इट्स लाइक मुझे एक नक्शा दे दिया किसी ने, और उस नक्शे के हिसाब से मैं नेविगेट कर रही हूँ. अब गाड़ी तो मैं पहले भी चला रही थी बट एमलेस चला रही थी, और मैं सोचती यार अब पत्थर गिर गया, बताओ, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, अब लैंडस्लाइड हो गया, हमें तो पता नहीं है क्यों. अच्छा लो बताओ बारिश आ गई. तो वी आर ऑलवेज, एंड 90% ऑफ द पीपल आर गोइंग लाइक दैट. देन व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू गेट दैट मैप, एंड द मैप टेल्स यू दैट ओके इस बात पे हमेशा ही होती है. तो आप क्या करते हो? डिटोर ले लेते हो कि यार ये तो होना ही है, तो हमें पता ही है होगा. जुलाई के इस मौसम में हम सड़कों पे निकल रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, बारिश होगी, तो पता ही है, मैप है. तो दैट इज़ वॉट Evrenru does. It gives you the map of your soul. It encourages you to sit with yourself and identify that map of your soul. ये legit है, ये legal बिल्कुल है. legit है. आपका माइंड जो है, जैसे ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप आंखें बंद करके सपने कैसे देख लेते हैं? Astral travel. वो भी छोड़ दो. एक नॉर्मल इंसान, एक छोटा सा बच्चा, हम जगते हैं सुबह, आंखें तो बंद हैं, पर हम देख कैसे रहे हैं? The soul is traveling. आप अभी आंखें बंद करो, आपको डार्कनेस दिखाई दे रही है? Not completely. मतलब जो भी दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है, डार्कनेस, जो भी कुछ तो दिख रहा है, बट आंखें तो बंद हैं. कहाँ से देख रहे हो? इस बॉडी की आंखें बंद है, बट जो सोल की आंखें तो हैं वो तो तो फिर लेजिट है, राइट? व्हेन यू से हेलो inside of your body, and there will be a response. Somebody is listening, right? Somebody heard that hello inside. So it is legit. There is a power that resides within us. But we are conditioned to not listen to that power, because if we start listening to that power, we will become unstoppable. Because the fear of death will go away. The moment I realize that even if I die, it's okay. I'm just going to go back to my ancestors. Yeah. I'm just going to go back to my spirit guides. And I'm just going to go and prepare for my another life, another experience. True. Right? So ये सारे attachments जो आज मेरे पास हैं, मैं इन्हें enjoy कर सकती हूँ. मेरा बच्चे के साथ attachment, मेरा घर के साथ attachment, parents, पैसा, business, whatever. I'm here to enjoy those things
Sometimes be very agitated about it, sometimes be angry about it, sometimes be loving about it, sometimes happy about it, sometimes sad about it. यही तो एक्सपीरियंस करने आए हैं. पहाड़ पे बैठने के लिए थोड़ी ना आए हैं. क्यों नहीं आए हैं? वो भी तो क्योंकि एक्सपीरियंस है. डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, बट इट्स लाइक अ स्लैंग टू से कि अगर हम ये बोलें कि हमें लाइफ में, जो लोग कहते हैं कि हमें मनी एनर्जी एक्सपीरियंस ही नहीं करनी है, स्पिरिचुअल हो तो पैसा क्यों चाहिए, लेकिन आपने चूज ही अर्थ किया ना, उसकी तो करेंसी ही मनी है. तो वही एक्सपीरियंस नहीं करोगे, पैसा आएगा तो भी सिखाएगा, जाएगा तो भी सिखाएगा. तो उसको लोग एनर्जी की तरह क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो रिलीजन ने हमें कंडीशन किया कि पैसा तो सिर्फ भगवान के पास होना चाहिए. आप चढ़ावा दो आकर के भगवान को. बट इजंट ही द मोस्ट स्पिरिचुअल? व्हाई डज ही नीड मनी? वो तो अगर हम उनके रिलीजन के हिसाब से भी चलें तो भी तो ही इज द ऑल माइटी. व्हाई डू वी नीड दैट देन? यू नो, nobody ever asked for a temple. We don't have to make them. If you want to really empower somebody, tell that person he can connect to God sitting in the washroom. हमें तो ये बोला जाता है कि आप वॉशरूम जाने तो भगवान के रिलेटेड कुछ फोटो ये वो सब पहना तो उसे उतार करके जाइए. क्यों? पीरियड्स बुरे हैं, मंदिर में नहीं घुस सकते. नहाना बुरा है, आप नहीं कर सकते. आप अगर आप इफ़ यू आर शिटिंग यू कैन नॉट हैव सर्टन थॉट्स इन योर हेड. वो तो गलत है. लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, और क्यों आ रहा है? Is it not a normal process of the body? Why do we have to term certain organs of our body that ये वाले organs अच्छे वाले organs नहीं हैं, और कुछ हमें बोल रहे हैं हाँ ये हम कमर दिखा सकते हैं लेकिन बम्स नहीं दिखा सकते. क्यों नहीं दिखा सकते? आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं लेकिन बोब सुंदर नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमें कवर करके रखने पड़ेंगे. बट क्यों? I can think about God while I take a shower, you know, that time also I'm nude, but I cannot cannot think of God or read about God on my phone, you know, because I'm shitting. लेकिन दोनों ही चीज़ें तो वॉशरूम में हो रही हैं. Why is it that there is a taboo? People making out will turn around भगवान जी की मूर्ति दूसरी तरफ. तो tell me how is that even working? क्या अगर एक तरफ आप कह रहे हो कि जिसको आप प्रे कर रहे हो वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है ना, हर जगह है, तो उनकी मूर्ति अलग करके उनको नहीं पता चल रहा आप क्या कर रहे हो, और अगर पता चल भी रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? दिस इज वॉट यू केम हियर फॉर, टू एक्सपीरियंस थिंग्स, टू नो अबाउट थिंग्स, टू लर्न अबाउट थिंग्स, टू लर्न अबाउट इमोशंस, टू नेविगेट थ्रू योर इमोशंस, टू फाइट द हार्ड बैटल्स. Tell me one person who is not challenged. Anyone in this world जिसकी लाइफ में वो कहे भैया मेरी को तो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी. सबके है. हर कोई इंसान अपने लेवल पे, अपने सोल लेवल पे, जितना उसने अपनी पास्ट लाइफ में सीखा है उसके लेवल पे वो अपनी आज की प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है. कैसे होता है? कुछ चीज़ों की हमें इनर नोइंग होती है. तो वो कहाँ से आती है वो इनर नोइंग? कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है और हमें पता होता है कि हम ये प्रॉब्लम डील कर सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं और हमें नहीं पता होता कि हम उन्हें डील कर सकते हैं. उसके लिए हमें हेल्प लगती है, तो हम अपने सोल ग्रुप के पास जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं, जो लोग हमें इस लाइफ में हेल्प करने के लिए आए हैं और हम उन्हें हेल्प करने के लिए आए हैं. उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के हम उनके पास जाते हैं. और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं हमें पता होता है कि ये वाली प्रॉब्लम मैं डील कर सकती हूँ, आई डोंट नीड एनीबडी फॉर दिस, मुझे टाइम लगेगा बट मैं कर लूँगी. चाहे वो प्रॉब्लम पहली बार आपके पास आई है, वो कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, और वो कौन बता रहा है? हु इज टॉकिंग फ्रॉम द इनसाइड? हु इज टेलिंग यू दिस ऑन द इनसाइड? डू वी डू अ सेशन राइट नाउ और लेटर ऑन? एवरेंडू रीडिंग ये कैसे काम करता है? कैन इट हैपन राइट नाउ? It depends on the energy. You know, right now the energy is more of myth busting and things like that. Everyone to energy is very simple. When you come on a call with me, I'm there in a particular state. I also have to wear certain things before I do that reading, because it makes me understand the spiritual realm more. I'm becoming more open to receiving what is coming. Then we connect with your Everin. Your Everin has been with you since your first soul birth. It is like being your guide throughout. इसको अगर हम लॉजिकली समझना चाहते हैं, एक यूनिटी थी, वन डिवाइन सोर्स,
उसको हम भगवान कह दें, डिवाइन सोर्स कह दें, डिवाइन लाइट कह दें, जो मर्जी कह दें, यूनिवर्स कह दें, मल्टीवर्स कह दें. नाउ दिस वन सोर्स कुड नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. तो उन्होंने बोला कि मुझे तो एक्सपीरियंस करनी है चीज़ें, आई वॉन्ट टू सी थिंग्स. सो वॉट इट डिड, इट ब्रोक इट सेल्फ इंटू 2 पार्ट्स, जिसको हम बोलते हैं पोलैरिटी. वी ऑल अंडरस्टैंड पोलैरिटी, राइट? दिस बिकेम द फीमेल एंड दिस बिकेम द मेल. सो केम द फेमिनिन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी. अब ये 2 एनर्जीज जहाँ पे भी कंबाइन हो जाती हैं वहाँ बर्थ हो जाता है. अब वो इस प्लैनेट पे है, किसी और प्लैनेट पे है, 60 बिलियन प्लैनेट्स पे हैं, कहीं पे भी है, वहाँ पे बर्थ है और वहाँ पे एक्सपीरियंस है. बिकॉज यू कैन ओनली हैव एन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर फिजिकल एंड व्हेन यू आर फाइनाइट. You cannot have experience when you're infinite and non-physical. आप पेन एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते ना. आप इमोशन ही नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जब तक आप एक फिजिकल बॉडी में नहीं हो, जब तक आप एक फाइनाइट टाइम के लिए एक फिजिकल बॉडी में नहीं हो. क्योंकि आपको वो क्लॉक टिकिंग चाहिए ना, पता नहीं कब मर जाएंगे. आज ही जी लेते हैं, आज ही खा लेते हैं, आज ही पहन लेते हैं. 5 साल बाद बच्चों के लिए ये करना है, 10 साल बाद पेरेंट्स के लिए ये करना है. All of that is an experience now, but that is an experience because it is finite and physical. Beyond that, experience does not exist. So time as a notion does not present itself in the universe. As humans, we invented clocks. किसी की डेथ होने के बाद वो कहाँ जाता है? कहते हैं कि उसकी लाइक योनि है, कैन लाइक डिसाइड कि वो किस योनि में जन्म लेता है. अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. सिखिज़म में बोलते हैं 84 लाख जन्म के बाद आपको ह्यूमन का जन्म मिलता है. कोई कहता है कि एनिमल किंगडम आपसे नीचे है, आप जब मर जाओगे, अच्छे कर्म नहीं होंगे तो आप जानवर बन जाओगे. हाउ कैन समबडी बी बिलो यू हु हैज़ मास्टर्ड अनकंडीशनल लव? ओके, एनिमल्स. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आज दिवस के पास एक डॉग है या कैट है और दिवस घर आता है और दिवस का मूड ख़राब है, दिवस 10 लाख रुपए गवा के आया है. विल दैट डॉग वैग लेस, किस लेस, जंप लेस? आज दिवस ने 20 kgs वेट पुट ऑन कर लिया. एनी चेंज? आज दिवस ने किसी के साथ सड़क पे लड़ाई करी एंड दिवस बिहेव्ड वेरी बैडली. ही वॉज द वर्स्ट पर्सन टुडे. When you come home, any change? Me. Can we as humans do that? Yeah. We cannot do that. We cannot give that experience. आपकी वाइफ, आप अगर आप बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे तो वो आपको नहीं प्यार कर सकते. She will have a counter reaction to it, right? But that animal has mastered unconditional love. How can that person or that soul be below you? It cannot be. That is what we aspire to do in our lives, right? We want to master unconditional love. We've come here to master these emotions. Love, jealousy, anger, envy, sadness. All of this we've come to master. Then our soul shines brighter and brighter with every mastering that we do. Right? आज आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ये बोल के कि मैं लास्ट ईयर से आज काफ़ी बेटर स्टेट में हूँ, है ना. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ हूँ, है ना. वो अच्छा कैसे लगा? वो सारा एक्सपीरियंस गेन करके लगा ना. उस एक्सपीरियंस में आपने कुछ दिया, कुछ लिया. बट टुडे यू फील वाइजर, यू फील बेटर, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू फील मोर प्रिपेयर्ड, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सोल लेवल एट अ लार्जर स्केल. सो जो आप आज 1 साल में फील कर रहे हो, वो ऐसा 1 जन्म में फील कर रहे हैं कि यार ये वाली लाइफ जी थी, इसमें बहुत मुश्किल था सब कुछ. मैंने ये वाली लाइफ में सबसे हार्ड बैटल्स चूज करी. मतलब इतना मैंने अपने लाइफ में पेन इमेजिन नहीं किया था जितना मैंने देख लिया. तो मैंने बहुत ग्रो किया, मैं बहुत वाइज हो गया. तो अब नेक्स्ट लाइफ में आई कैन चूज टू इम्पार्ट दिस विजडम टू समबडी एल्स. Okay. And then choose a relationship accordingly. For example, आप ही तो example.
जो लोग हम कहते हैं कि साईं बाबा हैं फॉर एग्जांपल, है ना, उन्होंने अपने पुराने बर्थ्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, बहुत अर्ली एक्सपीरियंस करी, बहुत हार्ड टास्क्स अपनी लाइफ में चूज़ करे कि वो इतने वाइज हो गए। और जब वो इतने वाइज हो गए, देन द यूनिवर्स गेव देम अ टास्क दैट ओके नाउ इम्पार्ट दिस विजडम टू अदर पीपल सो दैट दे कैन सी व्हाट विजडम लुक्स लाइक। सो वट एवर ही लर्नड ही स्टार्टेड गिविंग। सो हम देखते हैं कई बार कि एक 3 साल का बच्चा इज एबल टू लाइक चैंट Yeah, सम मंत्रास, उसको श्लोक याद आसानी से हो जाता है, वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, Yeah. इवन दो जो घर का माहौल है इतना नहीं है, स्टिल उसको absolutely. आता है समझ. Yeah. It's because of his past. Lillian Kelly, she could play Mozart at the age of 4. No one ever taught her. She wasn't in any piano lesson. Kaise? It's a gift. It's a gift that you get from your past life. Because anything that you know at the back of your hand has been something that you have practiced over and over and over in your past lives. कोई इंसान कहता है मैं तो नेगोशिएट कर लेता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. Somebody says I can design, somebody says I can write, somebody says I can dance, somebody says I can cook, somebody says I can play this. ये तो मुझे आता ही था. कहाँ से आता था? और अगर ये सब चीज़ें लेजिटिमेट नहीं है तो फिर क्या है? How do you know? How do you see with your closed eyes? How do you know who is listening inside when you're talking? जब आप अपने साथ बैठे होते हैं तो कौन बात कर रहा है अंदर से? वो जो हम कह रहे हैं कि अरे यार ये सारे कॉन्वर्सेशन, कौन है वो अंदर जो कितनी कॉन्वर्सेशन कर रहा है? जो आपको ये बता रहा है यार मैंने तो बोला था ऐसा मत कर, ये मुझे पहले से पता था, या हम कहते हैं ये तो हमें पता ही था कि ऐसा होना है. तो वो कौन है जो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है? क्या लोग अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं आफ्टर डेथ? बिल्कुल कर सकते हैं. कोई कहीं नहीं जाता. एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती. एनर्जी सिर्फ शिफ्ट और ट्रांसफॉर्म हो सकती है. Nobody ever has gone anywhere. They're all here, just within a reach. You call them, they will be here. You just have to be centered enough with your own energy to feel it, to receive it, to see it. अगर आप एक मेरीगो राउंड पे बैठोगे तभी तो उसका थ्रिल पता चलेगा ना. अब पेरिस को फोटो एल्बम में देखना और पेरिस में जाके उस चीज़ को देखने में बहुत फ़र्क है ना. बट वहाँ तक जाने के लिए देयर इज़ मेहनत, टिकट बुकिंग, प्रिपरेशन, फ्लाइट, पैसा अरेंज करना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो सब आपको अरेंज करिए, देन यू एक्सपीरियंस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आईफल टावर. यू से वाओ यार व्हाट इज दिस, राइट? बट दैट मच एफर्ट यू हैव टू मेक. अदरवाइज यू कैन लुक एट अ फोटो एल्बम एंड से ओके आई विजिटेड पेरिस. I don't know. आज a part of me is in a thought process. जो भी आप बता रहे हो वो शायद मेरे बिलीफ सिस्टम से थोड़ा सा अलाइन नहीं हो रहा है. तो आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट. और मे बी इट इज़ लाइक चैलेंजिंग द फंडामेंटल विच आई हैव बिलीव्ड इन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. दिस हैपेंड विद मी ऑल्सो दिवस. आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली. शुरू से हम गुरुद्वारे जाते हैं, शुरू से हम वो सारी चीज़ें करते हैं. फिर आई गॉट मैरिड इनटू अ हिंदू फैमिली, तो फिर वो हिंदुज़म आ गया. फिर हमारे घर में हवन होने लग गए. 2 साल पहले तक मैं भी शनि महाराज की पूजा कर रही थी, आज भी कर रही हूँ, बट आज डर से नहीं कर रही हूँ. फ़र्क सिर्फ इतना ही है. नोबडी, एवरन रू डज नॉट से दैट यू हैव टू फॉरगेट समथिंग. इट इटसेल्फ इज़ अबाउट रिमेंबरिंग. वो ये कह रहे हैं अगर आप आधा घंटा मंदिर में बैठ रहे हो तो 10 मिनट अपने साथ भी बैठो. दैट यू आर नॉट डूइंग. अगर आप एक आइडल की पूजा कर रहे हो आधा घंटा, तो आप 10 मिनट अपने एंसेस्टर से भी बात करो, क्योंकि वो तो जी के गए हैं ये आपसे पहले. एंड द गॉड्स दैट यू हैव चोजन टू प्रे टू आर ऑल्सो योर एंसेस्टर्स इन अ वे. Okay. So it's not about you being away from religion. It is about understanding what the true religion wants you to do. It is all about connecting to source. Religion wants you to connect to source. Astrology, Reiki, healing, what I do, what anybody else. We are all wanting to just go back to the source. That is where is the ultimate happiness. If I have to go back and see my past life, and आपने बोला कि you'll make me see my dead body. Yeah.
उससे हाउ विल आई गेट टू नो कि क्या हुआ मेरे साथ उस लाइफ में? आई कांट क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिले नहीं कर पाता बहुत सारे लाइफ्स के बीच में कि ये वाली लाइफ क्या मेरी एक्चुअली में ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसका ट्रॉमा तो अलाइव है। तो वो ये कह रहा है कि ये वाली लाइफ से तो इतना फीड आ रहा है मुझे अभी भी, ये तो ख़त्म ही नहीं हुई। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग दैट लाइफ। For example, I'll close my eyes in that process with you and I go back. How do I know कि ये past life है या फिर ये past life है? जब आपको कोई गाइड करता है मेरे जैसा या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट आपको, तो वो आपके साथ उस चीज़ को नेविगेट करते हैं। So you can see it along with me. Yes, I can see it along with you. That is what navigation is. A lot of past life healers वो कहते हैं हम आपको आपकी लाइफ देख के बता देंगे। मैं बिल्कुल उस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है जिसकी है वही देखेगा। मैं असिस्ट कर सकती हूँ, Okay. है ना। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में आए हो तो 10th आप करोगे ना, मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो कर ली, है ना। मैं गाइड कर सकती हूँ कि देखो ऐसे ये वाले सम को कर ले, रट ले, ये तो आएगा ही आएगा पेपर में, ये मैं बता सकती हूँ। ठीक है. ठीक है, बट यू विल हैव टू गो थ्रू इट एंड आई विल होल्ड योर हैंड एंड आई विल होल्ड दैट हीलिंग स्पेस फॉर यू टू फील कंफर्टेबल, टू फील कॉन्फिडेंट, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. Your imagination is the best gift given to you. Whatever you imagine, you will hold in your hands. It has to be seen here. ये जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ये आपने पहले यहाँ क्रिएट किया है और वो यहाँ से यहाँ आया है. And that applies to everything in your life. That is the most beautiful thing that has been gifted to us. Biggest gift of the universe. Visualization. In that process when I go back, तो इसका श्योर नहीं है कि वो पास्ट लाइफ है या फिर पास्ट टू पास्ट लाइफ है. डिपेंड्स ऑन मी कि मैं नहीं, आपको पता चलेगा ना, आप खुद ही बताओगे कि मेरी पास्ट लाइफ है. हाँ, आप खुद ही बताओगे कि ये इससे पहले वाली लाइफ है, या आप बोलोगे कि नहीं, आई थिंक रफली 500 years पहले मैं एक विलेज में था. अच्छा, उसमें मैं एक मेल था, एक फीमेल था, या मैं किस एनर्जी में बॉर्न हुआ हूँ मैं, आप देख पाएंगे. आप देख पाएंगे. Only see the like dead body, right? No. You will see the whole life. Whole life. Like a movie. Yeah, like a movie. कि अच्छा मैं उस लाइफ में ऐसे किया, मेरे इतने बच्चे थे, मैंने ऐसे किया, मैं किसान था, नहीं मैं किसान नहीं था. अच्छा, मैं ये करता था, कुछ मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ है, कुछ ना लकड़ी का काम हो रहा है, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा. You know, depends on how much energy you are able to put into that. So with that you make a sense of, and then you say, देन द पर्सन, आप जो प्रॉब्लम मुझे बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम नेविगेट करनी है. जैसे मैं जब अपने पास्ट लाइफ में गई तो मुझे कैंसर से बहुत फियर था. मतलब आज मैं कैंसर का नाम बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कुछ साल पहले मिलते तो मैं कैंसर के नाम पे ऐसे पाल्टी भर के रो रही होती. कुछ हुआ नहीं है मेरी लाइफ में किसी को, मेरे आसपास भी, बट आई वॉज कैरिंग दैट फियर. देन व्हेन आई विजिटेड माई पास्ट लाइव्स, आई सॉ इन 4 of my past lives आई हैड कैंसर. एंड ऑल ऑफ दोज पास, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका फियर मेरी बॉडी ट्रैप करके चल रही है. So you mean that some people have phobia, चाहे पानी से हो, चाहे लिफ्ट में बंद होने से हो, तो ये सब भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम लास्ट लाइफ. ऑल फोबियाज आर पास्ट लाइफ ट्रॉमास. ऑल. अंधेरे का डर, पानी का डर, ऊंचाई का डर, ऑल पास्ट लाइफ. कुछ ना कुछ उस टाइम पे ऐसा घटा है आपकी लाइफ में जो आपकी बॉडी ने ट्रैप कर लिया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ट्रैप कर लिया, उसने उसके साथ बॉन्ड कर लिया है. उसको ट्रॉमा बॉन्डिंग बोलते हैं. इस लाइफ में व्हाट आई एक्सपीरियंस राइट नाउ, बिकॉज आई कांट undo much. I can certainly heal myself जो हुआ है मेरे साथ in the past life, but I want कि जो मैं अभी जी रहा हूँ इस मोमेंट पे और अगले जितने साल मेरे पास हैं, मैं उसको अच्छे से जीऊँ कि यहाँ से जो ट्रॉमाज है वो नेक्स्ट लाइफ में आगे ना जाए. तो मैं क्या करूँ? Identify your patterns. Patterns of behavior. Patterns of behavior. emotions. Trauma shows up as your behavior. Behavior in any like situation. For example, if a guest is supposed to be on the show. अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपकी बात कर करके बोलती हूँ, ठीक है. मैंने आपको बोला, दिवस यार तू बहुत बड़ा पागल है. I know. My wife says the same thing. ठीक है. और यही चीज़ मैंने इनको बोली यहाँ पे, यार तू बहुत बड़ी पागल है. और सामने वाले इंसान ने बोला, हाउ डेयर यू से दैट टू मी. और मैंने दिवस को बोला और दिवस बोला, यार मैं तो रोज़ सुनता हूँ ये बात, तो मैंने तो सेम ही बोली ना, और सेम इंटेंसिटी से बोली और सेम ही इंटेंशन से बोली, तो मुझे 2 अलग अलग रिएक्शंस क्यों मिले? Because the lens through which I see things. The lens, and what is that lens? Made up of the baggage, my emotions, my perception about myself, about others. Absolutely.
because of what you saw, because of what happened to you, because of what your body has stored, right? वो जो कहावत है, हिंदी की तो कहावतें बहुत मुश्किल है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, if I'm not wrong, right? That's what it is. क्योंकि पिछली लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आपका, तो अब आप पानी के पास जाते हो, कहते हो यार नहीं कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो. There's a very beautiful series on Netflix by the name of Another Self. Okay. It is all about this story of 3 beautiful girls, and one is a doctor, another one is suffering from cancer, one has all relationship issues, and how they reach out to an ancestral healer by fluke, and कैसे उन्हें अपनी लाइफ समझ में आने लग जाती है कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो आर्बिट नहीं है. द यूनिवर्स इज टू स्मार्ट फॉर कोइंसिडेंसेस, टू स्मार्ट फॉर कोइंसिडेंसेस. कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है. आप मुझे मिले, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. आप मेरे साथ दूसरी बार पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई कोइंसिडेंस नहीं है. मैं आपसे ज़्यादा आपकी वाइफ से रिलेट करती हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. उन 270 का मरना एक साथ एयरप्लेन क्रैश में, It's कोई not a कोइंसिडेंस नहीं है. coincidence. It is It was not a meant to be. coincidence. Because all of that collective energy came together and that landed up in that flight. It all came together. And it said, okay, this is when it is going to happen. Your energy walks in before you do. कैसे जो लोग बहुत पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं, उनके आने से पहले ही लोग एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, आएंगे 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 आएंगे. क्यों, कैसे ऐसा क्यों करते हैं? One is the kind of perceived value they have created by having an entourage, by having some bouncers around them. कैसे कर पा रहे हैं वो ये? They have more money. और वो पैसा कैसे? चलो ऐसे भी बात कर लेते हैं. पैसा कैसे? What is money? Money, जो आपने like वैल्यू दी किसी को भी, उसके बदले आपको एनर्जी मिली इन फॉर्म ऑफ मनी. It is just an energy, just like any other emotion, just like any other thing. मैं हंस रही हूँ यहाँ पे, है ना? मैं एकदम से हंसी, आपने मुझे देख के हंसा. मैंने क्या किया? एनर्जी एक्सचेंज. बिल्कुल. राइट. पैसा भी तो वही है. कैसे? मैंने आपको कोई चीज़ दी, आपने मुझे उसके बदले में पैसे दे दिए. मेरे पास जो था, बाटा सिस्टम. बिल्कुल, मेरे पास जो था मैंने वो टेबल पे रखा, आपके पास जो है आपने वो टेबल पे रखा. इट्स जस्ट एज तो सिंपल अगर एज एक इंसान को और पैसा कमाना है तो उसे क्या करना चाहिए? सेल्फ टॉक इम्प्रूव करनी चाहिए. सेल्फ टॉक, द काइंड ऑफ वर्ड्स ही चूजेस फॉर हिमसेल्फ. योर वर्ड्स आर स्पेलिंग्स. जो ये कहते हैं अरे विच क्राफ्ट में स्पेल होते हैं, वो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है. एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ इज अ स्पेलिंग. Every cell of your body is eavesdropping on what you think, what you say. Even the thoughts that you do not say aloud have more impact in your body than the ones that you do. So if I wear that like crystals, तो काम करेंगे वो? क्योंकि अगर मेरी जो टॉक है अपने साथ वो बहुत नेगेटिव है, but I've been asked to wear the crystals. तो क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको बार बार उस चीज़ के बारे में याद दिलाएंगे, आपको बार बार वो उस लेवल तक वाइब्रेशनली लेके जाएंगे ताकि आप वो एक्सपीरियंस कर सको कि जब मैं अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं कर रहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपने लाइफ में. तो वो एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं और वो बार बार देते रहेंगे. अब अगर आप उतने नेगेटिव हो कि आप वो एक्सपीरियंस भी नहीं देखना चाहते, तो कोई क्रिस्टल तो क्या, भगवान खुद भी आकर के आपको रगड़ देंगे, ऐसे मांझ देंगे और कहेंगे कि नहीं ऐसा करो, तो आप फिर वापस वहीं चले जाओगे. In that case, like in that case, first of all, go for healing and then go for crystals. हर किसी को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है. ये भी बहुत बड़ा मिथ है Oh. कि सबको हीलिंग चाहिए लाइफ में. सबको हीलिंग चाहिए लेकिन सेल्फ हीलिंग चाहिए. Nice. जो इंसान अपने साथ ही नहीं बैठ रहा वो मेरे सामने बैठ के क्या करेगा? मेरे पास कोई जादू नहीं है, या किसी भी हीलर के पास कोई जादू नहीं है. हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनको वो बातें समझ में आ रही हैं, है ना? अब एक इंसान अगर ये कह रहा है, मेरे पास एक इंसान आता है रीडिंग पे, वो ये आइडेंटिफाई करके आ रहा है कि मेरे ये पैटर्न्स हैं कि मैं ना हर बारी इसी सिचुएशन में फंस जाती हूँ. आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग अनअवेलेबल मैन. राइट. उसने वो पैटर्न अपने आप से आइडेंटिफाई किया है. व्हेन दैट पैटर्न कम्स टू मी, my first question is, tell me your relationship with your mother when you were 10 years old. Anybody struggling from that kind of an issue has an issue with their mother. या वो अपनी मॉम को उस लाइट में देख नहीं पा रहे हैं, या वो अपनी मॉम को साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं,
या वो अपने मॉम के लिए हमेशा ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने तो लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं, ये तो बहुत कुछ कर सकती थी, ये तो हमेशा मेरे पापा की सुनती रहती हैं, इनकी तो अपनी कोई से ही नहीं है लाइफ में। तो जब वो एंगल आप अपनी मदर से अब्जॉर्ब करते हो तो आप अपने आप को क्या बोल रहे हो? दैट आई एम लेस, सो लेस इज गोइंग टू अट्रैक्ट लेस। तो मैं सामने वाले इंसान के साथ वैसे अट्रैक्शन पे हूँ कि ये इंसान मुझे पूरा भी नहीं दे रहा ना, अगर ये मुझे इतना सा ही दे रहा है बेयर मिनिमम तो मुझे चल रहा है। वाई? बिकॉज आई हैव सीन माई मदर टेक द बेयर मिनिमम और बी द बेयर मिनिमम और नॉट बी अवेलेबल। सो क्योंकि मैंने वो सबकॉन्शियसली पिक किया है वहाँ से। एंड योर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लाइफ इज़ 100% सबकॉन्शियस। आप कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। जो लोग कहते हैं अरे हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्शियस थॉट है। कॉन्शियस थॉट्स मैनिफेस्ट नहीं करते, सबकॉन्शियस बिलीव्स मैनिफेस्ट करते हैं। आप सारा दिन रात कागज़ पे लिखो 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, दिन रात लिख लो, और अंदर से आप कह रहे हो यार मिल जाएगा तो पता नहीं क्या करूँगा, यार पता नहीं जो लोगों के पास इतना पैसा होता है वो कैसे जीते हैं, यहाँ क्या मेरी फैमिली मेरे साथ होगी तब। आप अंदर ये थॉट चल रहे हैं विच इज़ लैक, और बाहर आप 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। उस बिलीफ सिस्टम का स्विच बदलना है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है जो वो बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने वो कैंसर का स्विच बदला कि बस ये तो हो चुका ना, अब इस लाइफ में होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसका डर लेके तो नहीं चल सकती। मुझे नहीं पता आई हैव चोजन दैट इन माई सोल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस लाइफ, और मे बी वर्स समथिंग आई हैव चोजन और नॉट, मे बी आई जस्ट die peacefully in my sleep, I don't know. But I cannot live in the fear of something that happened ages ago. That choice I have. I do not have the choice of what I'm going to see in the future, but I do have the choice of relaying my past and saying this is where it ends, that's it. And बहुत लोगों को लगता है कि past, present और future एक लाइन में है। past, present और future एक सर्कल में है। आप बार बार अपना पास्ट विजिट करते हो, बार बार अपना प्रेजेंट विजिट करते हो, बार बार अपना फ्यूचर विजिट करते हो, और आप उस चीज़ को चेंज करते जाते हो। यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हो, यहाँ पे आके डिसीजन लेते हो, फिर यहाँ का डिसीजन लेते हो, फिर आगे जा करके डिसीजन लेते हो, फिर आगे जाके सोचते हो अरे यार अगर आज ये डिसीजन ले लिया तो 10 साल बाद ऐसा होगा, हो सकता है दुबई बैठी हूँ क्या होगा। 5 साल पहले मैं और अमन वाइन पे यही डिस्कस कर रहे थे वॉक करते हुए कि जब हमारे पास पैसा होगा तब हम क्या करेंगे, बिकॉज तब तो रेंट भी देना मुश्किल होता था। तब हम ये सोचते थे कि होगा यार तो कैसा होगा, आज है, आज हम सोच रहे हैं यार इतना है, अगर इतना होगा तो कैसे हम दुनिया की हेल्प कर पाएंगे। हम एक हीलिंग सेंटर खोल देते हैं, वहाँ पे हम ऐसे करते हैं, हम एक दिन फ्री रीडिंग्स करते हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं जो रीडिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, वो सब हम सोच रहे हैं बैठ के। लेकिन क्या ये मैं 5 साल पहले सोच सकती थी? बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। और क्या 5 साल के बाद मैं ये सोच रही होंगी जो आज सोच रही हूँ? बिल्कुल नहीं सोच रही होंगी। दैट फियर इज अनरियल, इट्स स्कैरी। आई वॉज इन अहमदाबाद अप्रैल में, जस्ट 2 months बैक। वहाँ पे एक क्लब था, स्विमिंग पूल में था मैं, एंड आई हैड नो क्लू कि उस स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो करीब 12 फीट तक है एक एंड पे। मैं इस तरफ था जहाँ पे मेरे पैर आराम से आ रहे थे, एंड मैंने किया स्विम, एक तरफ आके पैर फिसला क्या हुआ, एंड आई कुड नॉट कम आउट ऑफ द पूल। आई वॉज लिटरली लाइक ड्राउंड एंड आई हैड टू आस्क फॉर हेल्प। पहले आई थॉट कि कोई तब देख लेगा मुझे, बट जब लगा कि नहीं हो पा रहा है, मैंने हाथ ऊपर किया, सिर्फ हाथ बाहर आ रहा है, मेरा सिर नीचे जा रहा है, हेल्प हेल्प करके बोला। फाइनली कोई आया, उठाया मुझे एंड निकाला। उन कुछ सेकंड्स में आई कुड सी a lot about my entire life. Yeah, okay. Absolutely. I thought कि गया, मतलब every time you have a near death experience, your entire life will play in front of you in a fraction of seconds. जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से निकल करके बाहर की साइड आए हैं वो अपनी पूरी लाइफ रिले कर सकते हैं। It is the biggest timeline shift that they have ever done in their life. This is the biggest timeline shift that you are going to experience, and you will see, अभी 2 महीने पहले हुआ है ना, give it another 3-4 months. You will see something so big will happen, जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता था लाइफ में, ये डिसीजन तो मैं नहीं ले सकता था। और वो कहीं ना कहीं से वो टाइमलाइन शिफ्ट का गिफ्ट है आपको। There's one shift just happened over a period of time कि now I see my parents as कि see you again, मिलते हैं फिर से, अभी जाओगे आप after like few years or like decades, and I'll join you maybe after you, hopefully.
So we'll meet you again. That is the narrative now. Yeah. Then अरे यार ये तो चले जाएंगे. बिल्कुल. They'll be gone. But now I know कि ठीक है, we'll meet you again. Maybe some like other avatar. आप मेरे father थे इस life में, next life मिलते हैं. Because there has been many moments where I have said this line, मेरा हो गया. मेरा हो गया, हाँ. मेरा हो गया. I've said this n number of times, repeatedly, that too in a very like short span of time, back to back. बस we don't get that drive to push yourself harder. अभी done हो गया बस. I'm done. कि अब वो जो एक aspiration थी. All right. Just close your eyes. Continue to repeat this. I'm done. मेरा हो गया. जैसे भी आप बोलते हो. I'm done. आप सोचो आप सुखलीन को बोल रहे हो. So मेरा हो गया. I'm done. मुझसे और नहीं हो रहा है. I'm done. There's no point. I'm done. मेरा हो गया. I'm done. ये बॉडी में कहाँ फील हो रहा है? Somewhere in the head. कहाँ पे पॉइंट करो. Touch it. Somewhere over here. Somewhere over here. All right. Now imagine that you're wearing an ultraviolet glove that can go inside your body. आपके हाथ में आपने एक ग्लव्स पहन रखा है. कोई भी हाथ चूज कर लो. ठीक है. Now put that hand in your head and pull out that emotion. Physically? Physically कर लो अगर आपको वैसे देख के अच्छा लग रहा तो. You mean to say ऐसे Yeah, करके? just put your hand in your head and imagine you're pulling out that I'm done emotion right in front of you. उसको बाहर निकालो. What color is it? Kind of white. Okay. Tell that emotion to take a real form. उसको बोलो इंसान बन जा. एक रियल फॉर्म ले मेरे सामने जिससे मैं बात कर सकता हूँ. Has to make like a human being. No, it can be a light figure, but if you can speak to a light figure, say just take a form. Now ask the emotion, where are you coming from? And tell me the answer. It says that you've been doing a lot, thinking a lot about everyone, right? From your parents to your siblings to your spouse to your kid, and to the people whom you've been like serving. About कि जो तुझे एक पर्पस दिया गया था, क्या तो वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जो तुझे गिफ्ट दिया तो उसे कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है. You're not doing that much जितना तू capable है. That kind of guilt is there. All right. Now ask that energy to choose a number from 1 to 10 and give me the first number that you hear. 7. Now let that energy stay there and go back into your past and give me the most unpleasant incident that comes to your mind of your childhood when you were around 7 or 8. Nothing specific as such, which I can like recall maybe at 7 or 8. मुझे इतना याद ही नहीं आ रहा है कि at 7 पे क्या All हुआ, at right. 8 पे At क्या हुआ. 15 or 16. I can see myself in class 10th, जहाँ पे insecurity है because as you know I've been a stammerer. Yeah. तो जब एक वाइवा होता है, I can like recall myself or like see myself in that chemistry lab, जहाँ पे शायद 10th या 12th. There's a chemistry lab जहाँ पे like वाइवा हो रहा है and board exams का वाइवा है. And I know the answer, which is the right answer. Still मैं बोल नहीं पा रहा हूँ and जो external आए हुए हैं वाइवा लेने के लिए मुझे like जज कर रहे हैं and like शायद इसको नहीं पता and they mark me down. And then I come out of the room and I feel like so guilty कि यार I knew the answer but I could not speak up and I lost the mark for something which I knew. And this is one like feeling कि मैं नहीं कर पाया जो जिसके लिए मैं capable था. This is one thing which just like popped up. Where do you feel this feeling in your body? Somewhere in the heart. Okay. Put a hand on your heart and say, I'm not enough. I'm not enough. Say it again, I'm not enough. I'm not enough. I don't like feel like saying this, but I'm being forced to say this. मैं बोल रहा हूँ आपके कहने बिल्कुल पर. बिल्कुल. वो पेन कर रहा है अंदर जब No. आप ऐसे बोल रहे हैं तो एक अंदर से एक रिटेलिएशन. Like more than this, I feel this like forehead
इट्स अगेन जैसे कुछ लाइक वेव्स चल रही हूँ एंड यहाँ पे कोई ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा है जितना मुझे यहाँ पे फिर शायद लाइक प्रोसेसिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड, तो यहीं पे मुझे फिर से फील हो रहा है Okay. एज आई कीप माई हैंड ऑन माई हार्ट. All right. Now go back to that energy figure और उसको जा कर के बोलो कि ये जो इंसिडेंट मुझे अभी याद दिलाया है आपने, ये इंसिडेंट का मुझे क्या करना है. सरप्राइजिंगली दैट लाइक फिगर जो सामने है खड़ी हुई वो कुछ नहीं लाइक बोल रही है, मतलब बट देन इफ आई गेट टू हियर सम वॉइस Yeah. as I heard the number 7 Yeah. like previously. Yeah. So like मॉकरी वाली आवाज़ है हंसने वाली कि let it be, तू देख तू कहाँ पहुँच चुका है आज. That was like one moment in your life which was there, so chill. So say that why am I holding on to this moment for so long? Sorry? उनसे पूछो why am I holding on to this moment for so long? What part of it I have to heal? अभी लग रहा है कि जो आवाज़ आ रही है क्या वो आवाज़ है या फिर just that my brain talking in my head? That is your conscious mind interfering with the process. It's okay. जब आप पहली बार ऐसा करते हैं तो होता ही है. आप बस वो आवाज़ सुनो, वो बोल रहा है या वो नहीं बोल रहा, या आपको लग रहा है आपका माइंड आपसे बात कर रहा है. Either ways, what are you? You are also spirit only, no? It's a very casual reply कि like छोड़ना यार हो गया chill. Okay. What are the emotions that are surfacing at the moment? Frustration? All right. To that figure that is there right in front of you, imagine that there is a white light that is coming straight from the heart of God or universe, and you ask that figure to go back into that light and say, I've understood my lesson here, and I'm going to use it in my near future. But now I don't need you. And see that energy going back to the light. और आप अपने फोरहेड पे हाथ लगा करके जो भी उसका रेजिड्यू है वो भी आप उस लाइट में भेज सकते हैं. Whatever, like pull out all the rest of the cords that you feel are there, all the heaviness that you feel is there, and just keep sending it to the light. And say, I've learned my lesson. Keep repeating it to your body that I've learned the lesson, but I will use it in my own time. I'm thankful that this happened, and I know now what to do and what not to do. Till the time you feel that your head is empty of that particular cord, take a deep breath. Tell your forehead, thank your forehead that it was holding on to such an uncomfortable emotion for so long. Take a deep breath again, and when you feel comfortable, you can open your eyes. क्या देखा आपने? आप बहुत कुछ होल्ड करके चल रहे हैं. कुछ एपिसोड्स हैं सैडनेस से रिलेटेड, कुछ एपिसोड्स हैं गिल्ट से रिलेटेड, जहाँ आपसे कुछ ऐसा हुआ है, किसी इंसान को कुछ आपने हर्ट कर दिया, वो चीज़ आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर. वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ आपसे, और वो चीज़ शायद सामने वाले ने फॉरगिव कर भी दी है, लेकिन आप उसको कैरी कर रहे हैं अभी तक अपने अंदर. सप्रेशन बहुत ज़्यादा है. एंड वो जो एक इंसिडेंट आपने बताया, जो स्टटरिंग वाला जो आपकी लाइफ में इंसिडेंट है, और उससे रिलेटेड जो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, all of that has caused a major suppression and led to that one statement which is your belief system that I am not enough. तो अब वो I am not enough जो है वो I have to prove myself में चला गया है.
तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम अ बेटर हस्बैंड, आई एम अ बेटर फादर, आई एम अ बेटर एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बेटर पॉडकास्टर, आई एम अ बेटर स्पीकर. वो जॉनर में चला गया है. और क्योंकि वो इतने सारे जॉनर में चला गया है, तो जो आपने ये स्टेटमेंट शुरू करी कि मैं अब थक गया हूँ सब कुछ कर करके, ये सब कुछ बन बन के, उसका जो रूट कॉज है वो है आई एम नॉट इनफ. The only thing that you have to heal in your system is regarding this is I'm not enough. I'm not enough is self-judgment and self-sabotage, where people have told you over and over again through their eyes, through their behavior, through their words, that you will not be able to do anything in life because you stutter. एंड आपने उस चीज़ को एल्कमाइज कर दिया कि ये पेन को तो मैं कन्वर्ट करके छोड़ूंगा, मैं तो करके ही दिखाऊंगा. आप बॉब द बिल्डर बन गए. लेकिन अच्छा अब हुआ ना? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. लेकिन उसके अंदर आपने अपने आप को बहुत ब्रो बीट किया. आपने वो जर्नी प्यार से नहीं अपने साथ निकाली, आपने अपने आप को मार पीट के निकाली है. जो दिवस पिछले आई वुड से व्हाट I remember class second or third, the earliest which I remember, जब से I'm aware of my stutter. So almost 30 साल 28 साल तक आप काम कर रहे हो to build yourself. फिर after becoming a teenager, फिर आपने काम किया. उसके बाद प्रोफेशनली आप पिछले 14-15 सालों से, नहीं मोर देन दैट, 17 ईयर्स से आप माइंडफुली काम कर रहे हो टू बिकम अ बेटर स्पीकर, टू ओवरकम योर स्टटर एंड व्हाट नॉट. एंड आई फील दैट मैंने चाहे बहुत ही टफ मीन्स अडॉप्ट करे हों अपने लिए, be it to maintain my focus, be it to achieve certain things, be it to not relish the current moments for the future Divas. Which I said to you, ki aaj I feel at peace at times when I see this version of Divas as compared to the 17-year-old who was envisaging the version which I'm living today. So why would I not be open, or why would I like to go back to where I was? If today Divas Gupta goes back to stuttering, what will change in his life? Okay, when you asked this question to me and I thought कि क्या मैं इतना vulnerable हो सकता हूँ, तो मैं अब हो जाता हूँ. क्योंकि जो मैं आज करता हूँ professionally, it is about Divas who has traveled this path and has been able to manage his stutter. If I go back to the guy who used to stutter, number one, I wouldn't feel happy about myself कि यार तू क्या कर रहा है, मतलब तू बात कर सकता है अच्छे से and you can express yourself. जब मुझे एक चीज़ बोलनी होती थी पहले बचपन में, मैं बोल नहीं पाता था, अब मैं बोल पाता हूँ. That feeling is beautiful, so I would not like to go back. What if stuttering was not your past and it is going to be your future? If it would be my future, as in the जैसे next life. नहीं अभी इसी लाइफ में, जैसे कोई इंसान बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका पैर टूट जाता है, तो उसके बाद वो पूरी लाइफ नए तरीके से चलता है. तो आप अगर आपकी लाइफ में स्टटरिंग आपका पास्ट नहीं होता और आप शुरू से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते, आप यही लाइफ जी रहे होते, आप आज जो काम कर रहे हैं वही कर रहे होते, बट गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ यू वुड हैव come in contact with stuttering, then would your thought process change about it? Change about like what? जैसे अभी आपको लगता है कि मैं वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहता, आपको लगता है कि स्टटरिंग एक बहुत ही बुरी चीज़ है होने के लिए, क्योंकि वो जब मेरी लाइफ में हुई तो मेरे साथ सब कुछ बुरा हुआ है ना, तो आपने उसको एक नॉट सो गुड बॉक्स में डाल रखा है. बट अगर वो आपका फ्यूचर होता तो भी वो नॉट सो गुड होता या वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता?